Hello everyone. Thank you so very much once again for joining the channel Yoga with THP. And this is the second part of the that topic, because in first part we have already discussed about the thinking, and this is about the solving problem. And there are other lots of topic you can help out, like cognitive psychology, social psychology, positive psychology, introduction to guidance and counseling, introduction to clinical psychology and psychotherapy, and there are different a lot of other topics as well. So today we will be discussing about problem solving, how we solve our daily life problems. Or this is a topic of cognitive psychology. Let's start with the flow. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो है क्या। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक, जो डेली रूटीन की लाइफ होती है हमारी, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइक हम लोगों ने अगर छोटा सा टिकट भी खरीदना हो सिनेमा का, वहां से लेके बहुत बड़ा घर या जॉब या फिर करियर या फिर अपना जो शादी है उस हवाले से, तो जितने भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं वो इसमें सारे आ जाते हैं। और ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में चलता रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग दरअसल एक मेंटल प्रोसेस है जो जिसमें हम लोग डिस्कवर कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह से एनालाइज कर रहे होते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे होते हैं या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जिसमें हम लोग जितनी भी मुश्किलात हैं, जो ऑब्स्टैकल्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हम लोग डिफरेंट तरह से ढूंढते हैं और फिर उनको बेहतरीन तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो किसी की ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं या जितनी भी वो देखता है या देखती है कि उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है या पड़ेंगी, तो उन सब का सॉल्यूशंस, उन सब को डिफरेंट तरीके से डिस्कवर करना, एनालाइज करना और फिर उसके सॉल्यूशंस को निकालना, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं या वो कौन से ऐसे सोचें हैं जो हमें अपने डिसीजंस को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हर्डल का बायस बनती हैं, वो कौन से बैरियर्स हैं। तो सबसे पहले एक ये क्लिप देखिएगा और ऑनेस्टली इसको पॉज कीजिएगा जब यहाँ पे पॉज का बटन आएगा, और इसको सोल्यूशन की तरफ देखिएगा कि हम कितने प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। फिर आगे चल के हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट क्लिप्स एंड डिफरेंट मेथड्स के साथ। Taking that internship in a remote mountain lab might not have been the best idea. Pulling that lever with the skull symbol just to see what it did probably wasn't so smart either. But now is not the time for regrets, because you need to get away from these mutant zombies fast. With you are the janitor, the lab assistant, and the old professor. You've gotten a head start, but there's only one way to safety. Across an old rope bridge spanning a massive gorge. You can dash across in a minute, while the lab assistant takes 2 minutes. The janitor is a bit slower and needs 5 minutes, and the professor takes a whole 10 minutes, holding onto the ropes every step of the way. By the professor's calculations, the zombies will catch up to you in just over 17 minutes. So you only have that much time to get everyone across and cut the ropes. Unfortunately, the bridge can only hold 2 people at a time. To make matters worse, it's so dark out that you can barely see, and the old lantern you grabbed on your way only illuminates a tiny area. Can you figure out a way to have everyone escape in time? Remember, no more than 2 people can cross the bridge together. Anyone crossing must either hold the lantern or stay right next to it, and any of you can safely wait in the dark on either side of the gorge. Most importantly, everyone must be safely across before the zombies arrive. Otherwise, the first zombie could step on the bridge while people are still on it. Finally, there are no tricks to use here.
You can't swing across, use the bridge as a raft, or befriend the zombies. At first, it might seem like no matter what you do, you're just a minute or two short of time. But there is a way. The key is to minimize the time wasted by the two slowest people by having them cross together. And because you'll need to make a couple of return trips with the lantern, you'll want to have the fastest people available to do so. So, you and the lab assistant quickly run across with the lantern, though you have to slow down a bit to match her pace. After 2 minutes, both of you are across, and you, as the quickest, run back with the lantern. Only 3 minutes have passed. So far, so good. Now comes the hard part. The professor and the janitor take the lantern and cross together. This takes them 10 minutes, since the janitor has to slow down for the old professor, who keeps muttering that he probably shouldn't have given the zombies night vision. By the time they're across, there are only 4 minutes left, and you're still stuck on the wrong side of the bridge. But remember, the lab assistant has been waiting on the other side, and she's the second fastest of the group. So she grabs the lantern from the professor and runs back across to you. Now, with only 2 minutes left, the two of you make the final crossing. As you step on the far side of the gorge, you cut the ropes and collapse the bridge behind you. राइट तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली डिफरेंट जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें रहते हुए हम लोगों ने सोचा ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के ही वो सारे तरीके हैं जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग के दौरान कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो हमें रोकते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, वो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमें डिसीजन लेने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में रुकावट का बायस बनते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग जो है वो ऑब्स्टेकल्स की बात करेंगे जो इंटरफेयर करते हैं और हमारी एबिलिटी जो होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्विकली और एफिशिएंटली होती है, उनमें रुकावट का बायस बनते हैं। तो रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए, वो क्या चीज़ है, उसको मेंटल सेट्स बोलते हैं। जब भी हम लोग कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं तो वी ऑफन टेंड टू फॉल बैक ऑन सॉल्यूशन दैट हैव वर्कड इन द पास्ट। तो जो ऑलरेडी हम लोग इससे मिलता जुलता कोई काम कर चुके होते हैं, पहले से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते हैं, तो हम लोग फ़ौरन उसके नतीजे की तरफ हमारा ब्रेन हमें लेके जाता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये वाली अप्रोच यूज़फुल भी रहती है, क्योंकि इससे हम लोग क्विकली अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ या अपने जो क्वेश्चन है उसको आंसर्स कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है मुश्किल में ज़्यादा डाल देती है। डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो नए नए तरीके, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी को एक्चुअली इससे नुकसान भी पहुंचता है कि हमारी वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी दब जाती है। मिसाल के तौर पे कि कोई आप मैथ का एक अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर है, जो पहले भी आप इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके हैं, कर चुके हैं। सो आप क्या करेंगे कि उसको उसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका एक मेंटल सेट बन चुका होता है। जो आप एक दफ़ा हम लोग काम करते हैं वो मेंटल सेट बन चुका होता है, और दोबारा अगर उस तरह से वो आएगा तो हम लोग क्विकली उसको परफॉर्म कर लेंगे। हालांकि उससे आसान भी ये सवाल हल किया जा सकता है एक नए तरीके के साथ, लेकिन चूंकि हमारा मेंटल सेट बन चुका होता है इसलिए कई दफ़ा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में वही वाली अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस है उनको ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मेंटल सेट बोलते हैं। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो फंक्शनल फिक्स्डनेस के हवाले से है। और फंक्शनल फिक्स्डनेस भी ऑलमोस्ट जो हमारा मेंटल सेट है उसी तरह से होती है, जो एक्चुअली हमें फुल रेंज
जो हमारे ब्रेन की है उसको यूज़ करने में रुकावट का बायस बनता है, और हमारी जो एबिलिटी है नॉवल्टी के साथ या फिर क्रिएटिविटी के साथ या इनोवेशन के साथ वो हम लोग एक्चुअली इम्पेयर कर देती है इस एबिलिटी को हमारी। मिसाल के तौर पे कि आपने अपनी कमरे की दीवार पे एक जो फ्रेम है उसको हैंग करना है कील के साथ, तो आप चूंकि पहले ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप हथौड़ी के साथ ही उस जो कील है उसको दीवार में ठोकते हैं, तो आप कम से कम आधा घंटा अपने घर में उसी को ढूंढते रहे कि मुझे किसी जगह से हथौड़ी जो है वो मिल जाए। इसी असना में आपका जो दोस्त है वो आपके घर आता है और आपको कहता है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कहता है कि यार कोई मसला नहीं, ये तो जो रैंच के साथ है या किसी ईंट के छोटे से टुकड़े के साथ या किसी भी ऐसी कील से जो थोड़ी वजनी चीज़ है उससे भी इसको ठोका जा सकता है। तो एक्चुअली आपकी उस वक्त जो फंक्शनल फिक्सनेस है वो हो चुकी है और आप उसी चीज़ को ढूंढते रहे क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले प्रैक्टिस किया था। सो दैट वुड बी कॉल्ड अ फंक्शनल फिक्सनेस, जो हमें प्रॉब्लम को इनोवेशन या नोवेल्टी के साथ हल करने में रुकावट का बायस बनती है। इसके बाद कॉग्निटिव एक बायस होता है। अब जो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये फिर भी लिमिटेशन सब्जेक्ट टू लिमिटेड किसी तरीके से हो जाता है। किस तरह से? क्योंकि कॉग्निटिव बायसेस जो हैं often अक्सर औकात रिजल्ट ऑफ योर ब्रेन द अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमारा ब्रेन जो है एक्चुअली हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने देता, वो हमारी जितनी भी जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देता है और हम लोग डायरेक्ट किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें इनोवेटिवली, नोवेल्टी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि हम लोग कॉग्निटिव बायस में इस वक्त होते हैं और जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन को करके प्रोसेस कर रहा होता है और उसके मुताबिक हम लोग उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। उसके बाद हमारे पास एक कन्फर्मेशन बायस भी होता है। अब कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि इसमें जो हम लोग अपनी जो फेवरेट इंफॉर्मेशन है उसको एक्चुअली जो हमारे प्रीवियस एग्जिस्टिंग बिलीफ या बाइसेस होते हैं उसकी बेस पे हम लोग उसको कंफर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि जो लोग सपोर्ट या अपोज करते हैं किसी भी एक खास इशू के हवाले से या किसी भी एक खास शख्स को, तो वो क्या करेंगे ना, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे उसकी अपोजिशन में या उसकी सपोर्ट में, बल्कि वो क्या करेंगे कि वो डिफरेंट तरह की स्टोरीज भी जो है वो ऑलरेडी जो पहले से सुन चुकी हैं, जो नए तरीके से उन्होंने सुन के उसको अपोज या फिर डिस्पोज करना है, तो उस हवाले से ये बायसनेस की तरफ चले जाते हैं। तो इसको एक्चुअली कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किलात का बायस या रुकावट बनता है। Solving is a method अब teachers हम can लोग use to कुछ guide students स्ट्रेटजीज through देखते हैं any इस kind of problem. क्लिप में भी, और इसके अलावा भी There are काफी 4 ऐसी steps to स्ट्रेटजीज हैं जो हम problem लोग solving. प्रॉब्लम अपने को Define the सॉल्यूशन की problem, तरफ आसानी से लेके make जा a सकते हैं। plan, put the plan into action, and check the result. As an example, you'll see how these ants use the 4 steps. The first step is to clearly define the problem. To understand what the goal is and what is keeping you from reaching that goal. The ants want to move this cookie into their anthill, but it's too big to fit. The second step is to make a plan for solving the problem. This step includes talking about information and ideas that will be helpful. The ants decide to break the cookie into small pieces and move them into their anthill. The third step is to put the plan into action. They break up the cookie and move the pieces. And the fourth step is to check the result. It looks like it's working. Sometimes the plan does not solve the problem. For example,
This piece is still too big to fit. But that's okay. The 4 steps may need to be done more than once. It's an ongoing process until a solution is found. Define the problem. Make a plan. Put the plan into action and check the result. राइट, तो आपने देखा कि वो किस तरह से हमारे पास 4 जो है वो हायरार्की है जिस पे रहते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइकोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल किया जाता है उसको एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कहा जाता है। अब जो इस तरह की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस है उसको एल्गोरिदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाता है टू प्रोवाइड द करेक्ट आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक खास किस्म की प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर को आंसर करने के लिए, करेक्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किया जाता है। अब ये जो एल्गोरिदम है ये एक ग्राफ की सूरत में एक्चुअली ये एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे जो स्क्वायर रिप्रेजेंट ईच स्टेप, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप तस्वीर में लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, एरो देन ब्रांच ऑफ फ्रॉम ईच स्टेप टू पॉइंट टू पॉसिबल डायरेक्शन दैट यू मे टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम फिर उसके सोल्यूशन, फिर अगली तरफ प्रॉब्लम, फिर उसके सोल्यूशन, तो इस तरह से इसको हल करते हैं। जबकि यू मस्ट फॉलो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसमें डिफरेंट पाथ्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहले प्रॉब्लम लिखा जाता है, फिर इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस को लिखते हुए हम लोग एरोज को फॉलो करते हैं जिससे प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ और डिफरेंट नॉवेल्टी के साथ, डिफरेंट इनोवेटिवली उसको हल करने की कोशिश की जाती है एल्गोरिथम में। उसके बाद हमारे पास जो जिस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या क्वेश्चन को आंसर करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। अब ह्यूरिस्टिक एक ऐसा मेंटल शॉर्टकट है जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्विक जजमेंट करता है और एफिशिएंटली करता है। इसको रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। जो छोटे मोटे जो हमारे डिसीजंस हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई घर में या फिर होटल में या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछता है कि मैंने ये काम कैसा किया है, तो आप रूल ऑफ थंब क्या करेंगे कि फ़ौरन अपना जो थंब है वो ऐसे कर देंगे कि हाँ बड़ा ज़बरदस्त काम है, या जो कोई आइडिया देता है तो उसको कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है तुम्हारा, कपड़े कैसे पहने हैं बड़े अच्छे, कहने की बजाय सिर्फ अपना जो हाथ के इशारे से कह देते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को शॉर्ट टाइम में एफिशिएंटली परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ह्यूरिस्टिक जो है वो हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये कॉग्निटिव बायस की वजह से हर्डल भी क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रायल एंड एरर्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफरेंट सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं और नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस को हम लोग ट्राई और एरर और फिर ट्राई फिर एरर, तो इस तरह से हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ उसके सॉल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं या अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो इसमें जितने ट्राई करते हैं या जितने एरर्स होते हैं उसको दोबारा से जब रिपीट किया जाता है तो हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ निकलते हैं। इसके अलावा एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी है जिसमें एनालॉगी की अगर हम लोग बात करें, एनालॉग की बात करें, तो इसमें क्या करते हैं कि यूजिंग अ सॉल्यूशन दैट सॉल्व्स अ सिमिलर प्रॉब्लम। तो इसमें एक्चुअली हम लोग जो पहले से वही वाली प्रॉब्लम हमें कभी ज़िंदगी में आई थी उसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो वही वाला तरीका हम लोग दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर हमारे पास है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत बड़ा एक हमारा प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे मैनेजेबल
छोटे छोटे हम लोग उसको ब्रेक डाउन पोर्शन में कर लेते हैं, पार्ट्स में कर लेते हैं, और फिर हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर दूसरी को किया, फिर चौथी को किया, फिर 10वीं को किया। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर इस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास लैटरल थिंकिंग है। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं इनडायरेक्टली और फिर क्रिएटिवली बाय व्यूइंग द प्रॉब्लम इन अ न्यू एंड अनयूजुअल लाइट। क्योंकि हम लोग इसको बड़ा इनोवेटिवली या क्रिएटिवली कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग अपनी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखते हैं और फिर नए तरीके से हमारे पास आइडियाज आते हैं उसको हल करने के लिए। फिर मीन्स एंड एनालिसिस के जरिए भी हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें चूजिंग एंड एनालाइजिंग एन एक्शन एट अ सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप्स टू मूव क्लोजर टू द गोल। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको चूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो इसी तरह से एनालाइज करते करते अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ। फिर हमारा रूट कॉज एनालिसिस भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग रूट कॉज को एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि एक प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो वो अगर फिर हम उसका एनालाइज करते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। आई होप कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसका आइडिया हो चुका होगा, और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या डिसीजन मेकिंग के दौरान जो हमें हर्डल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, वो भी इसमें डिस्कस किए गए। फिर डिफरेंट आपको क्लिप्स जो है वो भी दिखाए गए ताकि आप प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। सो अगर आप समझते हो कि ये किसी दूसरे के काम भी आ सकती है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से शेयर करने से खुशियाँ और आसानियाँ पैदा होती हैं। आसानियाँ पैदा कीजिए दूसरों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन।